आगे क्वेश्चन, द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली ए गैप. दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द concept of welfare state. Welfare state is a concept where the government actively intervenes in social and economic affairs to ensure social justice, economic equity and public welfare. ठीक. Directive principle of state policy, part 4 and article 36 to 51 in the Indian constitution provided the foundation for welfare state. Example include free education, article 45, public health care and economic support programs. Communist state, ये USR, China, the state controls all economic and social aspect but not necessarily for welfare. Democratic state, democracy is a political system, whereas a welfare state is an economic and social policy. A police state exercises authoritarian control, unlike a welfare state which promotes social justice. एग्जाम्पल ऑफ वेलफेयर जस्टिस क्या है? स्कैंडिनेवियन स्टेट्स में देखा जाए तो स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, हाई सोशल स्पेंडिंग, फ्री हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. ठीक. इंडियाज वेलफेयर स्कीम्स, मनरेगा 2005, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. ठीक. बेवरेजेस रिपोर्ट यूके 1942 लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स. Constitution of India 1950 embodied the welfare concept through DPSP. ठीक. Which one of the following is not the philosophy of Constitution of India? कम्युनिस्ट स्टेट जो है ये फिलोसफी नहीं है. The Indian Constitution promotes socialism, welfare and political equality but does not follow communism. ठीक. सोशलिज्म 42nd अमेंडमेंट 1976 में आ गया था, एम्स टू इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस. Political equality, article 14 to 18, right to equality, ensures equal political rights for all citizens. Welfare state, a core principle under DPSP, जैसे article 38, 39, 41, 45, 47. ठीक. Socialist state, India follows democratic socialism unlike communist socialism. ठीक. Political equality, fundamental right, ensures equal opportunities in politics, employment and justice. डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म क्या है? सोशलिज्म अलाउज प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी, इंडिया यूके. कम्युनिज्म इज ए स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड अथॉरिटेरियन रूल, यूएसएसआर, चाइना. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट ए सोशलिस्ट एंड वेलफेयर स्टेट, नॉट ए कम्युनिस्ट मॉडल. ठीक. ग्रैंडविले एस्टीन ने क्या लिखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी क्या है? India is a parliamentary democracy. India follows a parliamentary democracy with president as the nominal head, article 52 to 78, and prime minister as the real executive, article 75. Election commission, article 324 to 329, ensure a democratic government accountable to the people. Presidential system, India follows a Westminster model, UK not the presidential system. Titular monarchy, India abolished monarchy in 1950 and follows a republican system, elected head of the state. Aristocracy, India is based on equality and democracy, not ruled by elite class. Separation of powers in India, executive government is accountable to the legislature, parliament. Judiciary ensures constitutional supremacy. Differences between parliamentary and presidential system, UK and India parliamentary, PM is answerable to parliament. USA presidential, president is directly elected and independent of the legislature. Source of the political power in India. What is the main source of political power of India? तो ये है people. Preamble of the Indian Constitution starts with the people of India, which means ultimate power lies with the people. Article 324 मतलब election commission ensures people elect representatives forming the government. Constitution is a legal framework, but power comes from people. Parliament derives its power from people's mandate through elections. President, Article 52, is a ceremonial head, not the ultimate power holder. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवर्निटी, चीन जैक रूसो ने कहा था. ठीक. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 गारंटीज एवरी सिटीजन्स द राइट टू वोट. इंडिया फॉलोज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इलेक्टेड एमपीज रिप्रेजेंट द पीपल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? ये फॉलो करता है सिंगल एग्जीक्यूटिव. ठीक.
In presidential system, the president is both head of state and head of government, exercising executive power independently. ठीक. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नॉट एक्सक्लूसिव टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम. इंडिया हैज़ ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया का दोनों तरह का है. सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर मोर रिलेवेंट टू पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे इंडिया यूके. रेसिजुअल पावर ऑफ स्टेट्स मोर अप्लीकेबल टू फेडरलिज्म. यूएसए इज ओल्डेस्ट प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी 1789. मोंटेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर्स इन्फ्लुएंस प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स. ठीक. डी बसु ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम. लक्ष्मीकांत कंपेरिजन ऑफ गवर्नमेंट टाइप. इंडिया इज a parliamentary democracy with a welfare state model. Power ultimately react with people as defined in the rest with people defined in the preamble. Presidential system follow a single executive model. ठीक. The Indian constitution is socialist, secular and democratic. ओके. अब आते हैं हम लोग. डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी men and women. Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity the intelligence and character of ordinary men and women. Democracy is a system where the power lies with the people and their elected representatives. It depends on the intelligence, character, awareness of common people to elect responsible leaders. Public participation देखा जाए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी. देखते हैं. It depends democracy system where power lies with the people and their elected representative. It depends on intelligence, character and awareness of common people to elect responsible leaders. Public participation, universal adult franchise, article 326 strengthen democracy. Strengthening executive leadership. Democracy is about collective decision making, not just executive authority. A superior individual with vision. Autocratic, not democratic leadership is based on elections. Party workers, political parties play a role, but democracy is not limited to them. लिंकन का क्या डेफिनेशन था? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम इंश्योर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाइवर्स ग्रुप. रिजर्वेशन, SC/ST, वुमेन्स कोटा. ओके. डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, इंडिया रैंक्ड 100 इंडिकेटिंग चैलेंजेस इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. मीनिंग ऑफ रिपब्लिक क्या है? इंडिया इज ए रिपब्लिक मीन्स क्या है? There is no hereditary rulers in India. ठीक. A republic means that the head of state is elected, not hereditary. In India, president, article 52, is elected through indirect elections, article 54 to 55. Monarchies, UK, Saudi Arab have hereditary rulers, whereas republics, USA, India elect their leaders. Final authority in all matters. People have power, but though through representatives, not directly. No parliamentary system. Incorrect. India follows a parliamentary system, article 74-75. India is a union of states, true, article 1, but not the definition of republic. Difference between republic and democracy. Republic क्या है? Head of state is elected, जैसे इंडिया USA में. और डेमोक्रेसी पावर रेस्ट विद द पीपुल, इंडिया और यूके में जैसे है. आर्टिकल 79 to 123 एक्सप्लेन हाउ रिपब्लिक फंक्शन थ्रू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी. Republic's implication in India. India is a republic, which implies that head of state is elected. A republic means president is elected. Article 52. India became a republic on January 26, 1950 when constitution came into force. Country is free. Freedom refers to sovereignty, not republicanism. Democratic system, true. But republic is more specific to head of state being elected. Parliament as final authority. पावर इज डिवाइडेड एमंग एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी. ठीक. एक ही जगह नहीं इकट्ठा रहता है. रिपब्लिक डी जनवरी 26 मार्क्स इंडियाज ट्रांजिशन
to republic for dominion status. Republic not dominion status. First elected president Dr. Rajendra Prasad. India follows the indirect election system. Electoral college elects the president. Which one of the following determine that the Indian Constitution is federal? कौन बताता है? Written and non-flexible constitution, free judiciary, residuary power are vested in central union. नहीं, distribution of power between union and state. बिल्कुल सही. Federalism means division of powers between different levels of government, union, state and local. 7th schedule article 246 क्या कहता है? यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है, कंट्रोल बाय सेंटर. स्टेट लिस्ट में 66, कंट्रोल बाय स्टेट. कंकरेंट में 47, शेयर्ड अथॉरिटी. ठीक, कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 246. रिटन एंड नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. आर्टिकल 368. फ्री जुडिशरी इंपॉर्टेंट बट नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ फेडरलिज्म. Decisionary power of center. India is a quasi-federal. Is true federalism. States have residuary power. Casey Weir described India as a quasi-federal with strong center. US is a true federation. India is a federal system with unitary features. Nature of Indian Constitution क्या है? Indian Constitution is partly rigid and partly flexible. Article 368. Amendment procedure makes the constitution partly rigid, special majority required, and partly flexible, simple majority sufficient. Rigid कैसे है? Rigid means very difficult to amend, like US constitution. Flexible means easily changeable, like the British constitution. Not rigid, not flexible, as India's constitution has both elements. Types of amendments: simple majority. Example: Article 368 for reorganization of states. Special majority, fundamental rights. Special majority plus state ratification, federal provisions. India is federal but quasi unitary state. The constitution is both rigid and flexible. Republic means no hereditary rulers. Democracy means power with people. Judicial review. Article 13 makes Indian parliament different from the British system. India's federal system क्या है? The Constitution of India provides for a federal system. बिल्कुल सही है. It has created a very strong center. ये भी लगभग सही है. India is a federal system because it has a dual governance, union and state government, and a division of powers. 7th schedule, Article 246. Okay. However, India has a strong center due to a features like residuary power, Article 248 with center. Emergency power, Article 352, 356, 360. Single citizenship, unlike USA, which has dual citizenship. अब देखा जाए, इंडिया इज ए फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट. किसने कहा था? केसी वियर ने कहा था. क्वेसी फेडरल. ठीक, मतलब स्ट्रक्चर में भले ये फेडरल है लेकिन स्पिरिट में क्या है? वो मतलब स्पिरिट में यूनिटरी है. ठीक. इंडिया डज हैव ए फेडरल स्ट्रक्चर. आर्टिकल 1. इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट. ओके. फेडरलिज्म एग्जिस्ट इन इंडिया. ठीक. कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1935 लेड द फाउंडेशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. अब देखते हैं ये फेडरलिज्म इन इंडिया. फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया. इंडिया इज नॉट ए फेडरल स्टेट. ए तो सही है लेकिन बी गलत है क्योंकि स्ट्रक्चर तो अपना फेडरल ही है, भले स्पिरिट यूनिटरी है. फेडरलिज्म इज ए प्रैक्टिकल इन इंडिया बट अडॉप्टेड विथ यूनिटरी फीचर्स. India is a federal state but with strong unitary features. Division of power, Article 246 ensures 7th schedule ensures federal governance. ठीक. India is a federal state though with unitary features. SR बोम्मई केस 1994 में क्या हुआ? declared federalism as a part of basic structure.
14th फाइनेंस कमीशन इंक्रीज्ड states share in central taxes from 32% to 42%. GST 2017 a federal taxation system ensuring uniformity across state. ठीक। SR बम्बई केस 1994 में ये तय हो गया था कि फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक। 14th कमीशन ने 42% कर दिया था। 15th कमीशन ने क्या किया, 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, उसको घटा के 41% कर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट इज ए फेडरल इन कैरेक्टर। अच्छा, मतलब कि फेडरल कैरेक्टर में क्या बताता है, तो बताता है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज सेफ गार्डेड। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आर्टिकल 124 से 147 इंश्योर्स दैट द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स आर रिजॉल्व फेयरली। ठीक। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। ठीक। मतलब केंद्र और राज्य के झगड़े में इसका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स एग्जिस्ट बट डज नॉट डिफाइन फेडरलिज्म। ठीक। ये एग्जिस्ट तो करता है लेकिन ये डिफाइन थोड़ी ना कर रहा है। यूनियन कैबिनेट विथ रीजनल रिप्रेजेंटेटिव रिलेटेड टू कोलिशन पॉलिटिक्स। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सबिलिटी important but not exclusive to federalism. Judicial review article 13 ensures law follow the constitution. Keswanand Bharti case 1973 established the basic structure doctrine including federalism. US federalism. Supreme Court decision like Marbury versus Madison 1803 strengthened judicial review. यहाँ देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो है। इंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप, ये फेडरल करेक्टर नहीं होता है। ठीक। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये है। सिंगल सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 मीन्स दैट ऑल इंडियंस आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया नॉट ऑफ इंडिविजुअल स्टेट अनलाइक यूएसए विच हैज डुअल सिटीजनशिप। Distribution of power, core feature of federalism, 7th schedule article 246. Written constitution ensures clarity and structure for federal governance, जैसे UK which has an unwritten constitution. Independent judiciary essential for federalism, protecting constitutional rights. अब देखते हैं यूनिटरी फीचर इन इंडिया, सिंगल सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11, रेसिजुअरी पावर टू सेंटर आर्टिकल 248, इमरजेंसी पावर आर्टिकल 352 से लेकर 360, रेसिजुअरी पावर का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 248। ठीक है। विच यूनिटरी एलिमेंट्स आर फाउंड इन इंडियन फेडरल सिस्टम। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड भी है। अच्छा, यूनिटरी एलिमेंट ये फेडरल है, रिजिड भी फेडरल है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। प्रेसिडेंट्स ऑफ अप्रूवल ऑन स्टेट बिल्स है। ठीक। तो यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर आर्टिकल 155 बाय प्रेसिडेंट मेकिंग स्टेट्स डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। ठीक। तो ये यूनिटरी फीचर है कि जो है सेंटर पे डिपेंडर है। प्रेसिडेंट्स अप्रूवल ऑन स्टेट बिल्स आर्टिकल 200 इंश्योर्स सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशंस। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इमरजेंसी प्रोविजन गिव द सेंटर स्वीपिंग पावर्स ओवर स्टेट्स। अब यूनिटरी बायस इन इंडियाज फेडरलिज्म क्या है, राज्यसभा स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इज वीकर देन द लोकसभा यूनियन रिप्रेजेंटेशन। सेंट्रल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल लिमिट स्टेट ऑटोनॉमी। ठीक। हम देखते हैं इंडिया इज फेडरल बट विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस, जैसे क्वासी फेडरल। जुडिशियरी इज ए की टू फेडरलिज्म इंश्योरिंग सेंटर स्टेट बैलेंस। सिंगल सिटीजनशिप इज ए यूनिटरी फीचर। इमरजेंसी प्रोविजन गिव सेंटर एब्सोल्यूट पावर ड्यूरिंग क्राइसिस। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिटरी एलिमेंट इन द इंडियन फेडरल सिस्टम, कौन कौन सा है यूनिटरी जो हो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं, ये फेडरल करेक्टर है।
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है, ये फेडरल है, ऑल इंडिया सर्विसेज ये जो है राज्यसभा ही कर सकता है, बिल्कुल सही है, मतलब राज्यसभा के उसी से हो सकता है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन ये क्या है, मतलब फेडरल करेक्टर है। यूनिटरी फीचर इन इंडियन फेडरलिज्म, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स आर्टिकल 155। President, central government appoints the governor, giving the center influence over states. Unequal representation in Rajya Sabha, Article 80. ठीक। Unlike the US Senate, where all states have equal representation, India's Rajya Sabha has representation based on population. All India Services, Article 312. IAS, IPS, and IFS officers are recruited centrally but serve in states, increasing central control. Okay, decentralization of power. This is a federal feature, as power is distributed to local bodies. 73rd and 74th Amendment 1992 में आया था। Judicial review is general democratic feature, not specific to federalism. Bicameral legislature exists in both federal and unitary system. Casey Weir's quasi-federal concept, India has federalism with strong unitary tilt. सरकारिया कमीशन 1998 या 1993 में क्या किया था, ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर स्टेट्स, सरकारिया कमीशन 1983 में कहा था। फेडरल सिस्टम इन इंडिया कैसा है देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसेस ए फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनिटरी बायस, बिल्कुल सही है। बोथ यूनियन एंड स्टेट्स लेजिस्लेचर आर सोवरेन, ना यूनियन बस। लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड इट्स यूनिट्स। ये भी नहीं है, जैसे मतलब जुडिशियल पावर्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस ए फेडरल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक। फेडरलिज्म इन इंडिया हैज़ ए यूनिटरी बेस बायस, ठीक, एविडेंट इन इमरजेंसी प्रोविजन 352, 356 एंड 360। गवर्नर्स रूल्स रेसिजुअरी पावर, आर्टिकल 248, ठीक। अदर ऑप्शन देखा जाए, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवरेन, इनकरेक्ट। स्टेट लेजिस्लेचर आर सबऑर्डिनेट टू पार्लियामेंट इन सर्टेन मैटर्स, जैसे आर्टिकल 249 हो गया, आर्टिकल 250 हो गया। फुल डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर, इनकरेक्ट, बिकॉज पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर्टिकल 250, ठीक है। Federalism with unitary bias explained in Bombay case, where federalism was included as basic structure doctrine. Seventh schedule, union, state and concurrent list defines power sharing references. Which one of the following characteristics is not true for the unitary form of government? Ideal for large countries. Which one of the following characteristics is not true for unitary form of government? Swift decision making सही है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन सही है, आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज ये नहीं सही है, मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज। यूनिटरी गवर्नमेंट, यूके, चाइना, फ्रांस फंक्शन बेटर इन स्मॉलर नेशंस, ठीक। जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट छोटे देशों में अच्छा काम करता है। वेयर सेंट्रलाइजेशन इज फीजिबल, फेडरलिज्म इज ए प्रिफर्ड इन लार्ज कंट्री, जैसे यूएसए, इंडिया और कनाडा, टू अकोमोडेट डाइवर्स लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रीजनल आइडेंटिटीज, ठीक। स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग, सिंस पावर इज सेंट्रलाइज्ड, डिसीजन आर टेकन क्विकली विदाउट लेंदी फेडरल नेगोशिएशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, मेनी यूनिटरी स्टेट्स, यूके have an unwritten and flexible constitution. Uniformity of laws, in a unitary system laws are the same across the country, ठीक।
यूनिटरी स्टेट जैसे यूके हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस। सेंट्रलाइज्ड पावर है। फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया, यूएसए। पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, सही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन कंबाइंड विथ रिपब्लिकनिज्म्स, दोनों सही है। ठीक। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, आर्टिकल 54 के थ्रू, मतलब प्रोसेस बताएगा 54 में। बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज, कौन कौन है उसमें? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। India is a republic, not hereditary monarchy, and parliamentary democracy ensures the real executive power lies in with PM. आर्टिकल 75 ये बताता है हम लोगों को। ठीक। रिपब्लिकिज्म, इलेक्टेड हेड, एक्सप्लेन व्हाई द प्रेसिडेंट इज indirectly elected. India is a republic with an elected head of state. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। डायरेक्ट वर्सेज इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ है? यूएसए में प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द पब्लिक। इनडायरेक्ट इंडिया और जर्मनी में प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 मार्क द शिफ्ट फ्रॉम डोमिनियन स्टेटस टू रिपब्लिक। इंडियाज फेडरलिज्म इज ए क्वासी फेडरल विथ यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ये क्या है? यूनिटरी फीचर्स हैं। फेडरल फीचर क्या? डिवीजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये सब क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है। इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विथ ए रिपब्लिकन स्ट्रक्चर, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज आर द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। नॉर्मली पीपुल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन एबो कॉन्टेक्स्ट? अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, सही है। नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नेंस, ये भी सही है। Political parties are essential for democracy as they provide governance, representation, and political stability. However, political parties are often criticized for corruption, inefficiency, and lack of accountability. ठीक। So, true democracy cannot function without political parties. ठीक। People usually blame political parties for governance failure. ठीक है। Sartori's theory of party system 1976 में क्या? political parties are necessary for policy formulation and governance. Okay, example, the role of political parties in India. Coalition politics since 1996 has shown both the strength and weakness of multi-party democracy. Sartori theory of party system. Who had proposed party-less democracy in India? तो महात्मा गांधी जी ने और जयप्रकाश नारायण, दोनों लोगों ने। महात्मा गांधी एंड जयप्रकाश नारायण एडवोकेटेड फॉर पार्टी लेस डेमोक्रेसी वेयर गवर्नेंस वुड बी बेस्ड ऑन पीपल्स कमिटीज एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ग्राम स्वराज। Gandhi's view, political parties create divisions and conflicts in societies. He believed in decentralized governance, panchayati raj. Jayaprakash Narayan's view proposed total revolution 1974, calling for a participatory democracy without political parties. जयप्रकाश नारायण ने कहा था। मतलब टोटल रेवोल्यूशन 1974 में इन्होंने ही वो किया था। ऐसे टांगे, एक कम्युनिस्ट लीडर हु बिलीव्ड इन पार्टी बेस्ड गवर्नेंस। ठीक। राम मनोहर लोहिया एडवोकेटेड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, नॉट पार्टी लेस डेमोक्रेसी। 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 इन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, जैसे पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी। क्रिटिसिज्म ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी, विदाउट पार्टीज इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज पॉलिसीज, मेंटेन स्टेबिलिटी एंड इंश्योर accountability. Objective of federalism in India. Primary objective of India's federal design was to weave a nation out of its many diverse parts and protect national integration. बिल्कुल सही है। Accommodation of diversities has built a strong, not weaker nationhood. बिल्कुल सही है।
India's federal system was designed to unite its diverse communities, ensure national integration. Article 1, Union of State. Diversity management federalism accommodates linguistic, religious, and cultural diversity while maintaining unity. Okay. Federalism was indeed aimed at national integration. Accommodation of diversity indirectly supports national integration. Diversity management and strengthen not weaken India. SR बम्बई केस 1994 में फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना. लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाज ए सक्सेस ऑफ मेंटेनिंग यूनिटी. ये देख लेते हैं हम लोग. नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बडीज द एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज. बिल्कुल सही है. इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिशनल एंड सेंट्रली स्टाइल. सही है. इंडिया हैज रिटेन्ड एलिमेंट्स फ्रॉम एंशियंट कॉलोनियल मॉडर्न गवर्नेंस. मॉडर्न स्टाइल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट्री सिस्टम. ट्रेडिशनल इनसाइट क्या है? पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नेंस. सेंट्रली स्टाइल इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी वैल्यू जैसे अहिंसा और सत्य. ठीक. अब देखते हैं. कास्ट सिस्टम स्टिल इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स इवन इन मॉडर्न इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. एंशियंट इन्फ्लुएंसेस मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी इज रिफ्लेक्टेड इन मॉडर्न आईएस स्ट्रक्चर. ठीक. ये देखते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज आर क्रूशियल फॉर डेमोक्रेसी बट ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर गवर्नेंस फेलियर्स. Partyless democracy was supported by Mahatma Gandhi and Jayaprakash Narayan. India's federalism was designed to unite diverse communities and protect national integration. Indian political system is a blend of ancient tradition and modern democracy. ठीक है. अब यहीं तक अब आगे कल करेंगे. थैंक यू. बाय बाय.